Good morning to everyone. This is the sum we will do now. Mrs. Solvent Limited intends to redeem its secured debts on 1st April 2012 when its financial position indicated. So redemption करना है Solvent Limited को. Balance sheet is given. Equities and liabilities. Shareholders fund, there is equity share capital, preference share capital, and amount is in lakhs. So 7 lakhs का equity capital है, 1 lakhs का preference share capital है, total share capital is 8 lakhs. Reserves and surplus में sinking fund है. Already there is sinking fund for debentures 3,85,000. General reserve है 90,000. 0.90 means 90,000, and the amount here, values here are given in lakhs. So 90,000. Then 4.75, that is 4,75,000 is the total reserves. Shareholders fund is 12,75,000. 8 lakh share capital, 4,75,000. Reserves and surplus. So total shareholders fund is 12,75,000. Non-current liabilities, we have 10% debentures redeemable at a premium of 10%, 4 lakh. So debentures कितना redeem करना है? 4 lakhs. And premium में write off करेंगे. So amount due on redemption will be 4 lakh का 10% premium. 4 lakh का 10% is 40,000. So 4,40,000 will be the amount due on redemption, including the premium which is payable. And this is secured against fixed assets, secured debentures hai. Then we have public deposits 25,000. All together, non-current liabilities equal to 4,25,000. Total fund 12,75,000 plus 4,25,000 is 17 lakhs. ये हमारा है टोटल. हम बोल सकते हैं टोटल सोर्सेस ऑफ फंड. टोटल liability, total of the liability is 17 lakhs. Then we have assets. Fixed assets है. Sinking fund invest, fixed assets is 10 lakhs. यहाँ पे दिया है देखो, fixed asset is 10 lakh. Then we have sinking fund investment, which include 5% infrastructure bonds 76,000, 6% national defense bond 1 lakh, 7.5% state financial corporation bonds 70,000, 7% IDBI securities 1,85,000. So their nominal values are given 80, 90, 70 and 1,90,000, and their costs are given 76,000, 1,70,000, 1,85,000. Total investment values 4,31,000. Total investment का value है 4,31,000. Bank balance is 2,69,000. Total assets equal to 17 lakhs. So we have read the balance sheet. Now what they have told. Debenture holders were given option. तो यहाँ पे रिडेम्पशन में डिबेंचर होल्डर्स को ऑप्शन दिया गया है, या तो यू टेक कैश ऑन रिडेम्पशन, या तो यू कैन टेक इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट प्रीमियम ऑफ ₹5 पर शेयर. मतलब 10 रुपए का इक्विटी शेयर तुमको मिलेगा प्लस ₹5 प्रीमियम, दैट इज इशू प्राइस रहेगा 15 रुपीज. 10 + 5. तो या तो डिबेंचर होल्डर्स आर हियर गिवन ऑप्शन, either they can take cash on redemption or they can opt for equity shares. Value of equity shares is 15. 10 rupees का share, 5 rupees का premium. Or one more option is given,
15%. They may go for 15% debenture in exchange of their 10% debentures. वो लोग क्या मांग सकते हैं, वो लोग क्या ले सकते हैं, 15. They can opt for 15% debentures of 100 each at a premium of 10 per debenture. मतलब 100 plus 10, 110. तो इशू वैल्यू रहेगा डिबेंचर होल्डर्स के लिए. अगर वो लोग 15% डिबेंचर लेना पसंद करेंगे तो उनको मिलेगा एट 110 रुपीज. 10 रुपीज का डिबेंचर, 10 रुपीज का प्रीमियम, दैट इज इशू वैल्यू विल बी 110. Now accordingly 3 options are given to the debenture holders. 50% of the debenture holders opted for option 1. 50% of the debenture holders opted for option 1, which is cash. Option 1 is cash. And 30% of the debenture holders opted for second option, which is equity shares of 10 each issued at 15. So 30% debenture holders ने second option लिया. फिर बाकी remaining जो 20% debenture holders है, they opted for the third option, which is what? 15% debentures of 100 each at 110. 10 rupees का premium. So this way all the debentures were sold at 15% below cost. अब इन्वेस्टमेंट जो था हमारे पास सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, उसका कॉस्ट है 4,31,000. बट क्वेश्चन में बोला है बिलो कॉस्ट कितने में सेल किया, 15% बिलो कॉस्ट. कॉस्ट कितना है, बिलो नॉमिनल वैल्यू नहीं बोला, क्या बोला है, बिलो कॉस्ट. तो कॉस्ट तो 4,31,000 है. जस्ट नाउ वी सॉ 4,31,000 is the cost of all the investments. Total cost is 4,31,000. बट हमें जितना कॉस्ट में मिला उससे 15% बिलो कॉस्ट में हमने सेल किया, राइट? तो हमने क्या किया, बिलो कॉस्ट में सेल किया. सो ये क्या हो जाएगा, हमें प्रॉफिट या लॉस, लॉस हो जाएगा. सो हम सबसे पहले ये हमें क्या बोला गया है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज. सो व्हाट वी विल डू, अवर फर्स्ट यहाँ पे डेट इज नॉट गिवन, डेट्स आर नॉट गिवन. सो लेट अस स्टार्ट विथ सीरियल नंबर वाइज बिकॉज डेट इज नॉट गिवन. तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट को सेल करेंगे तो क्या आएगा, कैश बैंक अकाउंट डेबिट. एंड हमने कितने में सेल किया, 4,31,000 का 85%. ये 85% कैसे आया, मुझे 15% कम में किया, बिलो. तो अगर 100% कॉस्ट है, 15% बिलो में किया, मतलब 100 माइनस 15, 85 में किया. सो 4,31,000 का 85% निकालो. हाउ मच यू आर गेटिंग, हाउ मच यू आर गेटिंग, अमाउंट 3,66,350. आर यू गेटिंग 3,66,366. फिर हम लोग क्या करेंगे, हमने डिबेंचर्स को सेल कर दिया तो हमारा सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट जो है वो असेट है, बट सेल करेंगे तो वो कम हो जाएगा. सेल करेंगे तो वो असेट लायबिलिटी नहीं हो जाएगा. सेल करेंगे तो असेट कम हो जाएगा. असेट कम होगा, असेट इज डेबिट बैलेंस, कम होगा तो डेबिट का अपोजिट क्रेडिट. सो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट कम हो गया, वैसे तो असेट डेबिट बैलेंस है, कम हुआ तो क्रेडिट करेंगे. अब ये जो डिफरेंस आया वो किधर आया है, द डिफरेंस इज इन द डेबिट साइड. डेबिट साइड में डिफरेंस है. सो लिखेंगे सिंकिंग फंड अकाउंट.
जो भी डिफरेंस आए, अगर डिफरेंस डेबिट में आए तो डेबिट में सिंकिंग फंड, डिफरेंस क्रेडिट में आए तो क्रेडिट में सिंकिंग फंड। सो कितना है डिफरेंस? तो ये मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 4,31,000 का हाउ मच परसेंट? बिलो 15% में सेल किया ना, सो 15% या दोनों को माइनस करो, तुम लोग को फिर भी डिफरेंस आ जाएगा 64,650। आर यू गेटिंग दिस अमाउंट? बीइंग सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, बीइंग सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, sinking fund investment sold for the purpose of redemption, या sold at loss भी बोल सकते हैं। तो sinking fund investment sold, सिर्फ sold लिखेंगे तो भी चलेगा, for the purpose of redemption of debentures, redemption, this is done। अब सिंकिंग फंड को सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट चला गया, तो अभी ड्यू का एंट्री पास कर सकते हैं क्या? नाउ वी पास द एंट्री ऑफ रिडेम्पशन। सो रिडेम्पशन में पहले तो हम अमाउंट ड्यू ऑन रिडेम्पशन एंट्री पास करते हैं। पहले कौन सा एंट्री पास करते हैं? अमाउंट ड्यू। ड्यू में हमारा 10% डिबेंचर जो कि लायबिलिटी है, अब रीपे करने वाले तो कैंसिल हो जाएगा, राइट? डिबेंचर्स लायबिलिटी है, यू विल से क्रेडिट बैलेंस, बट अभी ड्यू में इसको पे करने वाले तो इसको कैंसिल करेंगे। 10% डिबेंचर कितने का है? देखो 10% डिबेंचर इज 4 लाख, सो वी विल गो 10% प्रीमियम, प्रीमियम में रिडीम करना है। रिडीमेबल, सी हियर व्हाट यू हैव टोल्ड, रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 10%। सो प्रीमियम भी रिडेम्पशन में देना है, सो ये हो जाएगा 4 लाख। एंड एक और चीज देने वाले, दैट इज प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट। कितना है? 10% है ना, सो 4 लाख का 1 मिनट, 4 लाख का 10%, दिस बिकम्स 40,000। ये पूरा पैसा किसको पे करेंगे? डिबेंचर होल्डर्स। अमाउंट ड्यू ऑन रिडेम्पशन टू डिबेंचर holders account. This will be 4,40,000 being amount due on redemption, being amount due on redemption, being amount due on redemption. Now see, now what has happened in this question, जब हम पेमेंट करेंगे ना तो 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कैश का, सेकेंड ऑप्शन इक्विटी शेयर्स का 10 का 50, थर्ड ऑप्शन डिबेंचर का 100 का 110। सो लेट अस गो टू द फर्स्ट वर्किंग नोट। देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन वर्किंग नोट में फर्स्ट ऑप्शन कितने लोगों ने लिया। उससे पहले तो देखते हैं अमाउंट ड्यू ऑन रिडेम्पशन, वो हमने ऑलरेडी फाइंड किया है। अमाउंट ड्यू ऑन रिडेम्पशन is equal to ₹4,40,000. Now let us go for option 1. Option 1 क्या है? In cash. Option 1 में redemption will be in cash, right? Option 1 जो डिबेंचर होल्डर लेंगे उनको redemption कैसे होगा? In cash. So how many of them opted for this? How many of them opted for the first option? 50% debenture holders opted for the first option. So here we will go and we will write 4,40,000
इतना अमाउंट ड्यू है रिडेम्पशन में इंटू 50%, सो कितना हो जाएगा ₹2,20,000। ये हो जाएगा अमाउंट पेड इन कैश ऑन redemption, amount paid in cash on redemption. So यहाँ पे कैश पे करेंगे तो कैश विल गो आउट एंड हु विल गेट द मनी, डिबेंचर होल्डर। तो क्रेडिट में था ड्यू के टाइम पे, तो यहाँ पे डेबिट में आ जाएगा एंड टू व्हाट विल गो आउट, टू कैश बैंक account. How much amount we have got? 2,20,000. 2,20,000. Being debenture holders, redeemed who opted for ऑप्शन 1, उनको हमने वो डिबेंचर होल्डर को हमने रिडीम किया जिन्होंने ऑप्शन 1 के लिए ऑप्ट किया था। व्हाट वी हैव डन, पहला ऑप्शन था 50% कैश, 50% डिबेंचर होल्डर ऑप्टेड फॉर दैट ऑप्शन, तो हमने फाइंड आउट किया कैश में कितना पैसा बाहर जाएगा, मिल गया। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वन, that is the second option. Second option is what? 10 rupees का इक्विटी शेयर, 5 rupees का प्रीमियम, so 15 rupees में इक्विटी शेयर दिया। and how many debenture holder opted for second option? 30%. go to the working note, working note में जाओ, we will write option 2 which is in equity shares, सिर्फ इक्विटी शेयर्स भी लिख सकते हैं, ऑफ ₹10 ईच इशूड एट ₹50। सो अगेन 4,40,000 का कितना परसेंट, 30%, कितना होगा ये, हाउ मच इज दिस कमिंग टू, 1,32,000। सो इसके लिए व्हाट वी विल डू, इशू प्राइस क्या है 15 रुपीज, डिवाइड बाय 15 करो, तुमको मिल जाएगा हाउ मेनी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैव बीन इशूड, इट विल बी 8,800 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each issued at ₹15। प्रीमियम ऑफ 5 बोलेंगे तो भी चलेगा। See here, when ये टोटल अमाउंट इतना गया 30%, लेकिन उसमें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कैसे पता चलेगा कि ये 1,32,000 को पर इक्विटी शेयर ऑफ 15 रुपीज दिया गया, सो डिवाइड बाय 15 करेंगे तो ही नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स मिलेगा कि कितना इक्विटी शेयर्स दिया गया। सो कितना इक्विटी शेयर्स दिया गया, ये 30% होल्डर्स को 8,800, कितना इक्विटी शेयर 8,800। ऑलवेज टू फाइंड आउट द नंबर डिवाइड बाय द इशू प्राइस, कितने ने इशू किया उससे ही हमेशा डिवाइड करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल तो तुम्हारे पास 10,000 रुपीज था और उसमें तुमने 100 रुपीज का स्वीट लिया, डिस्ट्रीब्यूट करना था, एक स्वीट था वो 150 का, लेकिन तुमको वो 100 रुपीज में मिला, तो तुमको 10,000 में कितना स्वीट्स लिया रहेगा वो नंबर जानना है, तो 150 से डिवाइड करोगे या 100 से, 100 से, बिकॉज हमें तो वो 100 में इशू हुआ,
तो नंबर जानने के लिए हमेशा इशू प्राइस में डिवाइड करना पड़ता है, फिर वो डिस्काउंट में इशू होने दो या प्रीमियम में, बट हमेशा डिवाइड करेंगे इशू प्राइस से, तभी शेयर्स डिबेंचर जिसका भी हमें करेक्ट नंबर्स मिलेगा व्हेन वी डिवाइड बाय द इशू प्राइस। सो यहाँ पे क्या कम हो जाएगा, वी आर डिबेंचर होल्डर्स को पे कर रहे हैं ना, कैश तो हमने पे ही नहीं किया, हमने ये सेकेंड ऑप्शन में इक्विटी शेयर्स इशू किया है, लेकिन किसको, डिबेंचर होल्डर्स को दिया। डिबेंचर होल्डर जब ड्यू था तो क्रेडिट में था, अब पेमेंट करेंगे तो डेबिट हो जाएगा, लेकिन व्हाट वी आर गिविंग देम, वी आर गिविंग देम इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल इज अ लायबिलिटी, हम इनको इक्विटी शेयर्स देंगे तो इक्विटी शेयर क्रिएट होगा, लायबिलिटी क्रिएट हो रहा है, कितना 8,800 इंटू 10, एक इक्विटी शेयर 10 रुपीज का है, और हम क्या कर रहे हैं, 10 रुपीज का इक्विटी शेयर प्रीमियम में इशू कर रहे हैं। सो प्रीमियम का पैसा हम हमेशा कहाँ स्टोर करते हैं, प्रीमियम का पैसा हम हमेशा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में स्टोर करते हैं। तो 8,800 इंटू 5 रुपीज का प्रीमियम, हाउ मच यू आर गेटिंग, 10 रुपीज का शेयर, 5 रुपीज का प्रीमियम, सो here you will get 88,000 and here you will get 44,000, दोनों को ऐड करो, आपने 1,32,000 दिया, यहाँ पे भी हमें वही मिला 1,32,000, जिसमें हमने 8,800 इक्विटी शेयर को शेयर इशू किया 10 रुपीज का, और एक्स्ट्रा पैसा दैट इज 5 रुपीज प्रीमियम में इशू किया। तो इधर लिखेंगे बी डिबेंचर होल्डर्स, being debenture holders settled through option 2, सेकेंड ऑप्शन से सेटल किया, that is by issuing equity shares. Now we will go for the next option, which is option 3. ऑप्शन 3 में हम देने वाले हैं इन 15% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 each issued at ₹110. Now go to the question. थर्ड ऑप्शन क्या है, 15% डिबेंचर 100 का एट प्रीमियम ऑफ 10 पर डिबेंचर। सो कितने लोगों ने ऑप्शन लिया, 20% डिबेंचर होल्डर। सो गो टू द वर्किंग नोट एंड 4,40,000 का 20% निकालो, हाउ मच यू गेट, how much you are getting, 88,000, are you getting 88,000? now ये 88,000 डिवाइड करो इशू प्राइस ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर का इशू प्राइस है 110, कितना डिबेंचर्स मिल रहा, आर यू गेटिंग 800 15% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 each issued at 110, ₹110 each. So अभी को अगेन डिबेंचर होल्डर कैंसल हो रहे, तो ओरिजिनल में था डेबिट क्रेडिट में ना, जब पे करना था ड्यू एंट्री में था क्रेडिट में, अब पेमेंट करेंगे तो वो डेबिट में होगा, बट पेमेंट कैश द्वारा ही करेंगे जरूरी नहीं है। देखो ये सब में हम क्या देने वाले, 15%। अगेन लायबिलिटी है, डिबेंचर्स क्रिएट होगा तो क्रेडिट में रहेगा, एंड कितने का डिबेंचर, 100 का ना, सो दिस बिकम्स 80,000
एंड हम 10 रुपीज का प्रीमियम भी दे रहे। प्रीमियम कहाँ लिखते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, हाउ मच? 800 into 10, which gives us 8,000, and this is 88,000 being debenture holders settled. Debenture holders settled through option 3. Third option, all the debenture holders are settled. नाउ ये होने से पहले एक बार क्या करेंगे, हमने प्रीमियम में राइट ऑफ किया है ना। नॉर्मली डिबेंचर इशू होते वक्त ही हम क्या करते, प्रीमियम भी एडजस्ट करते, लॉस को एडजस्ट करते, एक्स्ट्रा पैसा देने वाले। कि यहाँ पे ऐसा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो हमारे पास इधर डू वी सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं, जनरल रिजर्व ही है ना, पर सिक्योरिटी प्रीमियम हमें कितना चाहिए सर? देखो ड्यू में हाउ मच प्रीमियम वी हैव गिवन, हाउ मच प्रीमियम वी हैव गिवन 40,000। इसको राइट ऑफ करने के लिए हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना पैसा है? 44 है, और हमारे पास और 8,000 मतलब 52,000 है। तो 52,000 में से 40,000 यूज कर सकते हैं। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम, दिस एंट्री हम इग्नोर भी कर सकते हैं। क्या अज्यूम करके? ऑलरेडी डिबेंचर को प्रीमियम प्रोवाइड किया है इशू के टाइम में ही, ऐसा करके हम ये एंट्री नहीं पास करेंगे ये अजम्पशन के साथ तो भी हो जाएगा। पर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो प्रीमियम और रिडेम्पशन डेबिट में था, देखो ड्यू के एंट्री में डेबिट में था, अब इसको राइट ऑफ कर रहे हैं। This entry in redemption is not compulsory because हम जब इशू करते हैं डिबेंचर तभी प्रीमियम के लिए, डिस्काउंट के लिए, सबके लिए पहले इशू में ही प्रोवाइड करते हैं। अगर हमने प्रोवाइड नहीं किया इशू में तो यहाँ पे करना पड़ता है। अगर हमने इशू के टाइम पे ही प्रीमियम के लिए नहीं प्रोवाइड किया ड्यूरिंग रिडेम्पशन, जब हम इशू करते हैं तभी रिडेम्पशन का प्रीमियम अगर होगा तो वो भी हम पास करते हैं एंट्री। अगर वो नहीं प्रोवाइड किया तो यहाँ पे करना, तो ये कंपल्सरी एंट्री नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? सो यहाँ पे कितना चाहिए? 40,000 being premium on redemption, return of। लास्ट एंट्री क्या रहेगा? यस, सिंकिंग फंड में जो वैल्यू है that will be transferred to general reserve. So sinking fund account debit to general reserve. Go to the sinking fund once. sinking fund में कितना बैलेंस था जरा देखो। sinking fund में था 3,85,000। उसमें अभी कुछ तो आया ना, सिंकिंग फंड में लॉस आया है 64,650। हाउ मच इट वाज? 3,85,000 प्लस 64,650। सो आई वांट टू हियर 1 minute 6। So here what we will do, sinking fund में there was 3,85,000 in the beginning, we saw in the balance sheet, but 64,650 loss हुआ था during sale of investment, तो हमने ये डेबिट में लिखा है। सिंकिंग फंड डेबिट मतलब लाइबिलिटी, डेबिट मतलब माइनस होता है, लाइबिलिटी क्रेडिट मतलब इंक्रीज, लाइबिलिटी इज क्रेडिट बैलेंस
और क्रेडिट में रहेगा तो प्लस करते हैं, बट ये डेबिट में मतलब सिंकिंग फंड का बैलेंस यूज हुआ है, हाउ मच 64 650, सो ऑलरेडी यूज हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 64 650, हाउ मच इट इज कमिंग 3,20,350, 3,20,350 being balance transferred, being balance of sinking fund transferred, being balance of sinking fund transferred. With this sum is done. Thank you very much.